Hello, good morning, the students of class 6. How are you all? As we all know that we have completed the part first of computer, the chapter number 1 earlier, and today we are starting the rest part of the chapter number 1. चैप्टर नंबर 1 का जो हाफ पार्ट अपना था वो पहले हो ही चुका, अब हाफ हम अब करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपका IBM सिस्टम है। तो in early days of computing, most machines were on-off models. A program developed for a computer would only run on that computer. The change in the system was brought about by the IBM System 360, which was announced in the year 1964 and delivered between the years 1965 and 1978. This was a mainframe computer. It could be ordered in a variety of models with different processing speeds, but each machine was compatible with others. Thus, as an application developed for one machine would work on any variant. IBM 5150 released in the year 1981. It was the first IBM computer. It had Intel 8088 CPU and floppy disk drive. Since then, computers have undergone many changes and have evolved at present day notebooks, smartphones, handheld computers, etc. Generations of computer. Each generation of computer is characterized by some major technological development that fundamentally change the way computers operate. So इसमें first generation, second generation, third, fourth and fifth generations हैं. So we are talking about first generation period. That is this is the period time. All of the fifth generations, these are the parts: vacuum tubes, transistors, integrated circuits, microprocessor, artificial intelligence. तो यहाँ बात हो रही है IBM सिस्टम 360 की। तो पहले जो अर्ली डेज थे कंप्यूटर्स के, कंप्यूटिंग के, उस टाइम पर जो मशीन्स हुआ करती थी वो वन ऑफ मॉडल में हुआ करती थी, लेकिन फिर बाद में चेंज आया इसमें और IBM सिस्टम अपलोड किया गया और 1964 में हुआ। और इसकी जो डिलीवरी था वो 1965 से 78 के बीच में की गई थी। ओके, ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था और इसके मॉडल्स जो हैं वो काफ़ी वैरायटीज़ में हैं इसमें। ओके, कंपैटिबल है और काफ़ी अच्छी मशीन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका IBM 5150, रिलीज़ हुआ था 1981 में और ये एक फर्स्ट IBM कंप्यूटर है और इसमें इंटेल 8088 CPU और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का यूज़ किया गया है, ठीक है। इसके अंदर है तो आप देख सकते हैं ये इसी तरह से हमारे पास अभी मिल जाएंगी चीज़ें, मतलब हमने इस जनरेशन में देखा है। बट ये ऐसा नहीं था, CPU ऐसा नहीं होता है हमारे जनरेशन के अंदर। CPU एक बॉक्स टाइप होता है जो साइड में रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर जनरेशन से कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन का पीरियड ये रहा, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। अब उसके बाद में जो पार्ट्स है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की गई थी, सेकंड ट्रांजिस्टर्स देख सकते हैं आप, और थर्ड में आपके इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए गए हैं, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया है और फिफ्थ के अंदर आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है। फिर फर्स्ट जनरेशन में आपकी प्रॉपर्टीज़, these were very large in size and produced too much heat. They were also too slow. Examples are Mark 1, UNIVAC, first INEC, EDVAC, IBM. Properties: these were small in size, faster in speed and used magnetic tapes and punch cards to store data. Examples: IBM, UNIVAC. Properties: these were smaller, faster and could perform more complex tasks. Example: IBM 370. Properties: these were light in weight and faster. Examples: desktop, laptop, palm top. These are PCs like IBM system. Next is properties: these have parallel processing and superconductor technology. Example: HAL 9000 and robots. तो प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन बहुत बड़े थे और बहुत साइज़ में बड़े होने के साथ साथ हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, लेकिन चलते बहुत स्लो थे। इनके एग्जांपल्स ये रहे। प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी सेकेंड जनरेशन की, इसके साइज़ छोटे थे, स्पीड में फास्टर थे, मैग्नेटिक टेप्स थी और पंचिंग कार्ड्स होते थे स्टोर डेटा के लिए। एग्जांपल्स है। थर्ड जो आपकी प्रॉपर्टी है थर्ड जनरेशन की, छोटे थे, बहुत अच्छे से चलते थे और बहुत सारे एक से ज़्यादा टास्क को कंप्लीट कर लेते थे। इसमें IBM 370 है। अब जो फोर्थ जनरेशन है वो लाइट वेट है, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, ठीक है। और अब जो प्रॉपर्टीज़ जो फिफ्थ जनरेशन अभी चल रही है इसमें सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें रोबोट्स वगैरह आपके आते हैं। तो एक जनरेशन से सारी कंप्यूटर्स की और उसके अंदर जो भी चेंजेस हुए या प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी इसमें आ गई।
Next, a classification of computers. Computers can be classified as microcomputer. A microcomputer is a computer with microprocessor as its central processing unit. They are smaller as compared to mainframe and mini computers. Microcomputers are the most common type of computers of the present day. They are also known as personal computers or PCs. तो यह माइक्रो कंप्यूटर की बात हो रही है. माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो कि माइक्रो प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से कंडक्ट किए जाते हैं. ये छोटे होते हैं मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स के मुकाबले. और जो इसमें मेन जो कॉमन जो चीज़ है वो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं. इन्हें मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है. ये मोस्ट कॉमन टाइप है कंप्यूटर का आज के टाइम में. ये पर्सनल कंप्यूटर क्यों है? क्योंकि इसमें एट अ टाइम एक ही जना वर्क कर सकता है. जैसा कि आप यहाँ पिक्चर्स देख सकते हैं. टाइप्स डेस्कटॉप, सबको पता है डेस्कटॉप. आई थिंक आप लोगों के घर में भी होंगे. ठीक है, तो ये होम, घर में, शॉप्स में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में, स्कूल्स में, बैंक में यूज़ किए जाते हैं. लैपटॉप भी बहुत मिल जाते हैं. लैपटॉप भी आप लोगों ने देखे होंगे अपने घर में. तो इजीली कैरी कर सकते हैं हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर. पाम टॉप जो होता है ये भी आपके जो हैंड होता है, पाम जो होता है, इसमें मतलब फिक्स हो जाता है और ये स्टाइलस से चलता है ये. ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल का पार्ट फिनिश होता है. अब आते हैं हम मिनी कंप्यूटर पे. मिनी कंप्यूटर इज अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर अटैच्ड विद टर्मिनल्स एंड अदर डिवाइसेस. इट इज़ अ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम दैट कैन सपोर्ट अबाउट 200 यूजर्स साइमल्टेनियसली. Its size ranges between that of a micro and a mainframe computer. It has its own individual types of hardware and software. These are powerful, efficient, and easy to carry. In the past few years, they have evolved as mid-range servers and become a part of network. Example: IBM's /400E. Mainframe computers are huge, expensive, and digital, which serve up to 100 to 400 users at a time. They occupy a special air-conditioned room. They are employed in large organizations for bulk data processing, statistics, etc. They represent information in form of numerical digits. Next is your supercomputer. They are very expensive and employed for specialized application that require immense amount of mathematical calculations. These are widely used in scientific applications such as electronics, petroleum, refining, engineering, weather forecasting, etc. तो यहाँ तीनों कंप्यूटर्स के बारे में बताया गया. मिनी कंप्यूटर एक स्टैंड के जैसा है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर. तो ये 200 यूज़र्स को एक साथ सपोर्ट कर सकता है. ठीक है, तो इसका जो साइज़ है वो मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर जो होता है उनके रेंज में आता है, इन दोनों के रेंज में. ठीक है, अब इसका जो इसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग टाइप्स के होते हैं. तो ये पावरफुल होता है, एफिशिएंट होता है और इजी टू कैरी होता है. इसको कैरी करने में प्रॉब्लम नहीं आती. नेक्स्ट है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर. ये बड़ा होता है, एक्सपेंसिव होता है और डिजिटल होता है. इसमें 100 to 400 यूज़र्स एक टाइम में वर्क कर सकते हैं. आप पिक्चर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है. साइबर कैफ़ेज़ होते हैं या फिर जहाँ पे हम पूरा साइबर नेटवर्क जो होता है जहाँ पर, वहाँ पर ये चीज़ देखी जा सकती है. ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करते हैं. बल्क डेटा प्रोसेसिंग होती है, इसमें स्टैटिस्टिक्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट आप देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर. ये बहुत एक्सपेंसिव, बहुत खर्चीले होते हैं और एम्प्लॉयड किए जाते हैं स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए. ठीक है, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस आपकी होती है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं ये. अब इसके अंदर क्या है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, रिफाइनिंग, इंजीनियरिंग, वेदर फोरकास्टिंग के लिए आपके ये यूज़ में आते हैं. तो चलिए आपका चैप्टर यहाँ फिनिश होता है. अब हमारे जो इसमें वर्दी टर्म्स है ये आपके हार्ड वर्ड्स हैं. आप चाहें तो इनके हार्ड वर्ड्स इंग्लिश में एज इट इज़ इसको लिख सकते हैं. आप चाहें तो इनकी गूगल से सर्च करके हिंदी मीनिंग आप नोटबुक में लिख सकते हैं. ठीक है, ये आपका पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट आ गया जो आपको पढ़ाया गया है. इसे आप रीड करेंगे. ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आप अपने आप करने की कोशिश कीजिए. और आप अपने आप करेंगे तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे इस चीज़ से. और आफ्टर 2 days हम आपको इनके आंसर्स भेजेंगे ताकि आप इन्हें उनसे मैच कर सकें. ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय.